ladies and gentlemen. Welcome to an evening that promises to be filled with great message-giving, incredible performances. It is nothing less than pleasure to host you all for this fabulous evening that will celebrate shades of इंसान के रिश्ते, इंसान के संबंध, इंसान के relationships. I, Reena Srivastav, Relationship Manager, feel very honored to be given the opportunity of being your host and anchor for the evening. On behalf of entire H3 World School fraternity, I extend a warm welcome to Shri Kamal Mangal Sir, Chairman H3 and Anand Niketan Group of Schools, Pushpa Ma'am, Girdhar Sir, Aruna Ma'am, Aniket Sir, Arpit Sir, Ankit Sir, and members of the Mangal family. I also welcome our dear Princey Mom and Headmistress Amita Ma'am, and a very heartfelt and warm welcome to parents and relatives of the students of H3 who have kept aside a lot many tasks just to be here to motivate our dear students and the staff. किसी शायर ने खूब कहा है, हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबा पर हर वक्त मिठास रहने दो. यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का, ना खुद रहो उदास, ना दूसरों को उदास रहने दो. रिश्ते एक दूसरे के प्रति विश्वास को बढ़ाते हैं. विश्वास से आत्मविश्वास बढ़ता है. रिश्ते हमें त्याग करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं. I know you all are pumped up for the electrifying dance performances that you are about to witness, and so am I. So with no delay, let us call the dignitaries present here to light the lamp, which is our way of having God in all forms with us. So please. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते. दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. अब डर काहे का जब आप साथ हो हमारे. सर्वशक्तिशाली, दयालु, कृपालु भगवान, चाहे वो जिस भी रूप में हो, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, आप हमारे विश्वास के रूप में हमारे साथ रहना. भगवान के साथ का रिश्ता, ईश्वर के साथ का रिश्ता, अल्लाह के साथ का रिश्ता, उस ताकत को आप जिस भी रूप में देखते हो, जिस भी नाम से बुलाते हो, साथ का रिश्ता, उसे संतान और पिता का रिश्ता कह सकते हैं. उसे संतान और माँ का रिश्ता भी कह सकते हैं. ईश्वर से आप सखा भाव से भी प्रेम कर सकते हैं. भरत जी ने ईश्वर से दास भाव से भक्ति की थी. आप जिस भी रूप से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं, उस शक्ति को पाने की कोशिश करते हैं, वह उस तरह से रिश्ता स्वीकार कर लेते हैं. सो मे आई कॉल अपॉन स्टेज अ स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 and 6 विद देयर परफॉर्मेंस सेलिब्रेटिंग इंसान का रिश्ता विद ऊपर वाला, विद भगवान, विद ईश्वर. क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है. क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है. कैसी है ये अनहोनी हर आग हुई, छोड़ गया जो दूर
Let's hear it loud. Please give them a big round of applause. As we stand here, our hearts pounding, resonating with the rhythm the performance has set, we are reminded of the power of dance. May I now call upon stage our director, Mr. Aniket Mangal, without whose encouragement and faith, the event would never have been possible. Princey Mom often quotes Shakespeare from The Merchant of Venice when she describes Aniket sir's mature decision-making capacities, when she rightly says, Sir is young in limbs but in judgment old, which means young as he is. All his advice, decisions, foresight is extremely mature and grounded with vision. So please. Namaste and a very good evening to young H3ians, respected parents, dear family, respected Leena ma'am, Amita ma'am, heads, esteemed teachers, and all the guests gathered here today. I'm honored to stand before you as we come together to celebrate our annual function with a theme that resonates deeply within each one of us, Rishte. In this fast-paced world where technology often seems to dominate our lives, it is crucial to recognize and cherish the value of human relationships. As a community, we are interconnected, bound by threads of relationship. We have a relationship with ourselves, our spouses, parents, grandparents, brothers, sisters, society, country, and the whole world. It is through these connections that we find support, inspiration, and a sense of belonging. At H3, education extends beyond textbooks, encompassing the nurturing of emotional intelligence and interpersonal skills. The relationships we build throughout our lives shape our character, teaching us empathy, teamwork, and understanding, skills that are fundamental for success. At H3, parents, teachers, and students each play a unique role. Let us celebrate and uphold these relationships, recognizing that they are the foundation upon which we build a harmonious and a supportive environment for learning and growth of our young H3ians. मेरे पापा हमेशा कहते हैं, रिश्ते अमूल्य हैं और उन्हीं से हम निरंतर सुखी रह सकते हैं। और मैं इसी वजह से गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमारा पूरा परिवार हमारे साथ यहाँ उपस्थित है। I encourage each one of you to reflect on the importance of relations in our lives, both within these school walls and beyond. Tonight, we shall witness the fruits of our team's collective efforts, and the students take center stage to display their diverse talents beautifully around the theme Rishte. This evening is a testament to the hard work and dedication of both our students and teachers. Thank you for being an invaluable part of this beautiful evening. Dhanyavad and enjoy the night. It was a pleasure listening to each word of yours, sir. You never speak what you don't believe in. That is why each word you say becomes so meaningful. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are just about to embark on a memorable journey of beautiful performances. Today, the stage is not merely a stage, it has transformed into a realm of imagination and rhythm. जो हर वक्त आसपास रहे, वो अक्सर नज़र नहीं आता। माँ के साथ भी यही होता है। पता नहीं घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। माँ बेटी का रिश्ता कई भावनाओं से जुड़ा होता है, कभी प्यार, कभी लड़ाई, कभी बहनों सा रिश्ता तो कभी दोस्ती। दोनों एक दूसरे से जितनी भी नाराज़ क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके बीच का स्नेह कभी कम नहीं होता। Now we have on stage our students of grade 3 and 4 with their performance celebrating इंसान का रिश्ता with mother.
पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की, डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। माथा गरम है सुबह से मेरा, रखते हथेली ना माँ, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ, अब तू छुपा ले पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। लाडो Wow, enchanting performance. I request all the parents to please give a big round of applause for your mothers. This performance was not to be contained by words. Our babies found their voice in dance, where emotions and expressions were choreographed so beautifully that it painted tales more expressive than words themselves. भाई बहन के प्यार का बंधन है इस दुनिया में वरदान, इसके जैसे दूजा कोई ना रिश्ता चाहे ढूंढ लो सारा जहान. Siblings are the people we practice on, the people who teach us about fairness, cooperation, kindness and caring in a journey in this world. भाई बहन के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत कुछ नहीं है. भाई बहन की शान होती है और बहन भाई की जान होती है. Now I invite on stage Savita Sharma ma'am to present before you a beautiful poem on brother-sister relationship. गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं सविता शर्मा आज आप सभी के सामने मुझे अति प्रिय लगने वाली भाई बहन के रिश्ते पर लिखी एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ. आई एम श्योर यहाँ मौजूद हर व्यक्ति इस कविता से रिलेट कर सकेगा. जो पहली याद मुझे तेरे साथ याद है, तब मैं शायद 1 या 1.5 साल की थी. मम्मी हम दोनों को घर पर छोड़कर काम पर जाया करती थी और उनके जाते ही हम खेलना शुरू करते थे घर घर. तब मैं बनती थी मम्मी और तू मुझसे 4 साल बड़ा मेरा बेटा. और न जाने कब मेरे रोने पर तू मम्मी बन जाता था. पीठ पर मुझे लाद कर मम्मी आने वाली है कहकर बहलाता था. मैं डरती थी अंधेरे से, तो छुपन छुपाई में तू ही हमेशा मेरी डैन बनता था. लड़ते झगड़ते हम साथ रहते थे, थोड़ा भी अलग होते तो बुखार हो जाता था. पिटाई किसी की भी हो या इंजेक्शन लगे, पिटाई किसी की भी हो या इंजेक्शन लगे, पर हम दोनों मिलकर रोते थे. छिपकली के पीछे मिलकर भागा करते और तेरी मनगढ़ंत कहानियों पर मुझे अब भी है भरोसा हो जाता. कैसी पागल सी थी मैं, कैसी पागल सी थी मैं. हर रोज़ गिरती थी तेरी साइकिल के पीछे बैठकर, और फिर भी हर रोज़
और तेज कहकर चिल्लाती थी। और तेरे पीछे बैठकर फिर भी मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने साइकिल चलाना सीखा ही नहीं, और सच में नहीं सीखा। आस पड़ोस में हमारा कोई दोस्त नहीं। वजह सिर्फ इतनी सी है, हम दोनों के लिए हम दोनों ही काफ़ी हैं, हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं। और रही बात पढ़ाई की, तो तूने मुझे बहुत मारा, लेकिन मैंने फिर भी मैथ्स के टेबल याद नहीं किए। पर बाकी का हर सब्जेक्ट जब तू पढ़ता था मैं तभी याद कर लेती थी। तेरी पहली स्कॉलरशिप पर घड़ी मैंने खरीदी, तेरी पहली स्कॉलरशिप पर घड़ी मैंने खरीदी, तेरी जॉब पर डायमंड सेट भी मैंने लिया, तेरी जॉब पर डायमंड सेट भी मैंने लिया। वजह तेरा खर्चा कराना नहीं था, पर जब तू बढ़ता है तब मैं उड़ती हूँ। मैं जब कभी भी खुद को हारा हुआ महसूस करती हूँ तो अनजाने में ही सही तू ही मेरा हौसला होता है। तू मेरी हिम्मत है, तू मेरी हिम्मत है, और एक तेरे लिए, सिर्फ एक तेरे लिए मैं इस पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। एक और बात, मम्मी पापा ने नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में मैंने तेरे हाथ की नक्शे वाली रोटियां खाई हैं। मम्मी पापा ने नहीं, उनकी गैर मौजूदगी में मैंने तेरे हाथ की नक्शे वाली रोटियां खाई हैं। पापा अक्सर बचपन में कहते थे, तू मेरे लिए छोटे पापा जैसा है, लेकिन तू मम्मी और पापा दोनों के जैसा है। तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। आई होप यू लाइक्ड इट। मेरी प्रस्तुति में कोई कमी रह गई हो, प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। This deserves a loud applause. शायद आप सभी की आंखों में तालियों की जगह आंसू है। I could relate to the relationship I have with my brother. I have actually dived into the depths of time. साधारण ग्रस्त बुजुर्ग अपने परिवार से 3 अपेक्षाएं रखते हैं। उनका परिवार सुख से रहे, उनकी अवहेलना ना हो तथा सब साथ रहें। It is truly said, parents know a lot, but believe me, grandparents know everything. बहुत सेल्फी लेते हो, ज़रा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को ज़रा आईना भी दिखाया करो। ज़बाने के तजुर्बे गूगल पर नहीं मिलेंगे, मिले जो वक्त बुज़ुर्गों के पास बैठ जाया करो। उन छुरियों वाले हाथों में, दादा दादी की बातों में ज़िंदगी जीने के तजुर्बे मिलते हैं। बुज़ुर्ग व्यक्ति को थोड़ा मान सम्मान और अपनापन ही चाहिए होता है। सो लेट अस रिमेंबर टू लव अवर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाइल दे आर देयर, सो वी डोंट हैव टू रिग्रेट सेइंग काश हम साथ होते, काश वो रुक जाते। Now, I would like to invite on stage a teachers and student of grade 5 to show relationship with grandparents. बेटा मेरा चश्मा ढूंढ दो, बेटा मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। क्या पिताजी, आप हमेशा अपने चश्मे कहीं रखकर भूल जाते हो? उसकी एक जगह क्यों नहीं रखते? हम सबको अपना काम छोड़कर आपके चश्मे ढूंढने में लग जाना पड़ता है। ये तो रोज का नाटक हुआ पिताजी का। उम्र हो गई है बेटा, अब कुछ याद नहीं रहता। तो आपको कौन सा देश चलाना है? पेपर नहीं पढ़ोगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा? बेटा राहुल, तुम मेरा चश्मा ढूंढ दो। अब उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उसे पढ़ने दीजिए। मम्मी, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ। लो दादाजी, यह रहा चश्मा, अब आप मुझसे ही मांग लिया कीजिए। मम्मी पापा बहुत बिजी रहते हैं, मुझे आपकी मदद करना अच्छा लगता है। आया बड़ा, मदद करना अच्छा लगता है। पहले पढ़ाई कर लो, हमें तुम्हारे कम मार्क्स अच्छे नहीं लगते। दादाजी का चमचा बनने की जरूरत नहीं है, अभी हम हैं दादाजी का ध्यान रखने के लिए। क्या कनी, कब से बकबक कर रही हो? दिख नहीं रहा मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ? तो मैं भी कोई बेकार नहीं बैठी हूँ, पूरा दिन काम करती रहती हूँ, और ऊपर से तुम्हारे पिताजी चैन की सांस तक नहीं लेने देते।
राहुल दरवाजा खोलो तो। राहुल सुनाई नहीं दे रहा, दरवाजा खोलो। राहुल तुम पढ़ाई करो बेटा, दरवाजा मैं खोल देता हूँ। नमस्ते दादाजी। नमस्कार। कनी है घर पे? आओ बेटा आओ। बहू देखो कौन आया है। आओ आओ कोमल, आज कैसे आना हुआ सुबह सुबह? बस यहाँ से निकल रही थी, सोचा आप लोगों के साथ चाय पे कुछ गप्पे लड़ाती जाऊं। आओ कोमल आओ, बैठो, साथ में चाय पीते हैं। इस बहाने मैं भी चाय पी सकूंगी, नहीं तो ये घर की दौड़ भाग और बुजुर्गों की सेवा में अपने लिए तो समय ही नहीं मिलता। क्यों? ठीक, आज तो कनी काफी उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। वो उखड़ी उखड़ी सी लग रही है, वही जाने। मैं भी बहुत परेशान हो चुका हूँ। दफ्तर में बॉस की चिक चिक, घर आओ तो पापा की चिक चिक। उनकी सेवा में ही रहना पड़ता है, कोई और करे तो करे क्या। सुन कार्तिक, मेरी सलाह मान। मैं एक संस्था को जानती हूँ, हेल्प करके नाम तो सुना ही होगा तुमने। तुम एक किराए पर मकान ले लो और दादाजी को वहाँ रख लो। ये हेल्प वाले ज्यादा कोई पैसे लेते नहीं है, सेवा भी अच्छी कर लेते हैं, दादाजी का ध्यान भी रख लिया जाएगा और तुम्हें फ्रीडम भी मिल जाएगा। ना ना कोमल, किराए के मकान का पैसा देना और ये हेल्प से जो व्यक्ति आएगा उसका पैसा देना, ये मुझसे नहीं होने वाला। ये हेल्प शेल्प छोड़ो, मैं तो कह रही हूँ पास में एक जीवन संध्या वृद्ध आश्रम है, वहाँ छोड़ दीजिए पिताजी को, और हम संडे टू संडे मिलने भी चले जाएंगे। वह ओल्ड पीपल का अच्छे से ध्यान भी रखते हैं और उन्हें दूसरे बुजुर्गों की कंपनी भी मिलेगी। गुड आइडिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया खाना होता है। संडे को मॉर्निंग में तो मीठा भी मिलता है, डिनर जो कि संडे को नहीं देते हैं। वैसे भी बुजुर्गों को वीक में एक दिन तो फास्ट रखना ही चाहिए, तबीयत के लिए काफी अच्छा होता है। सुबह तो मीठा होता ही है, शाम को न खाएंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। कनी, चाय बहुत बढ़िया थी, चलो मैं निकलती हूँ। मैं भी निकल ही रहा हूँ ऑफिस के लिए, मिलते हैं। चाबी कहाँ गई मेरी? गाड़ी की चाबी कहाँ गई? राहुल मेरी गाड़ी की चाबी ढूंढ दो प्लीज। मम्मी, पापा की गाड़ी की चाबी ढूंढ दो प्लीज। मेरे पास पढ़ाई का बहुत काम है, स्कूल में टीचर की, घर पर पापा की चिक चिक से परेशान हो गया हूँ। बदतमीज हो गए हो दिन ब दिन। बेटा बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते हैं। तुम्हारे पापा ऑफिस के काम से बहुत परेशान रहते हैं। बेटा राहुल, उनकी चाबी ढूंढने में मदद करो। सॉरी पापा, पर आप दादाजी से जिस तरीके से बात करते हैं, क्या वह बदतमीज नहीं है? कोई बात नहीं, मैं भी बड़ा होकर आपको वृद्ध आश्रम में रख दूंगा। वहाँ आपको भी अच्छी कंपनी मिल जाएगी। वहाँ आपसे भी कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा। यहाँ मैं खुश, वहाँ आप खुश रहना। किसने सिखाया तुझे ये बदतमीजी? स्कूल में क्या क्या सीख कर आते हो? पापा, मैं कहीं से नहीं सिखा ये बदतमीजी। मैं सब कुछ आप और मम्मी को देखकर ही सीख रहा हूँ। माफ करना, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, बट मैं आपको सिखाना चाहता था कि दादाजी की तरफ आपका जो व्यवहार है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माफ करना, लेकिन जब आप छोटे थे तब दादा दादी ने आपको धीरज से बड़ा किया, आपकी हर बात मानी, प्यार से समझाया। उन्होंने आपको हॉस्टल में रखने की बात कभी नहीं की, तो आप उन्हें वृद्ध आश्रम में रखने की बात कैसे सोच सकते हैं? और मम्मी या नाना नानी को मामा मामी वृद्ध आश्रम में रख देंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो दादा को वृद्ध आश्रम में रखने की बात से आप क्यों इतना खुश हो रही है? मुझे माफ करना बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। पिताजी मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा था। पापा जी, राहुल ने आज मेरी आंखें खोल दी। हमने ऐसा कुछ बोल दिया हो जिससे आपको दुख पहुंचा हो तो प्लीज हमें माफ कर देना। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे बच्चे हो। माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं हुआ करते। देर आए पर दुरुस्त आए। Wow. The act has left us all on the edge of our seats. The brilliant execution of the script, the remarkable performances, and the gripping storyline are a testament to the hard work of all the performers. Each performer has left us spellbound, and each character was brought to life with such finesse. It's remarkable.
what a group of dedicated and passionate individuals can achieve together. Fasten your seatbelts as we travel to a world where beats and movements are intertwined. Let's brace ourselves as we dive deeper into the journey of the evening. पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है. पिता नन्हे से परिंदे का आसमान है. पिता है तो घर में 55 राग हैं. पिता है तो माँ की बिंदी, चूड़ी और सुहाग है. पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं. पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं. From the moment they are born, little girls can have their fathers wrapped around their pinky fingers. A little girl's first hero will be her dad, and no matter how old she grows, a darling daughter will forever be her father's princess. The smile of a daughter is the secret purpose of every father. मुझसे अधिक कामयाब होना ये केवल पिता ही कह सकता है. A father's tears and fears are unseen. His love is unexpressed, but his care and protection remain as a pillar of strength throughout our lives. Girls may find their prince, but their dad will always be their king. No matter how old daughters get, they need Papa. Fathers are said to be every daughter's first love, and daughters, they never settle for anything less. So now we have on stage students of grade 1 with their performance celebrating Insaan Ka Rishta with Father.
Wow. What a performance. Let's have a thunderous applause for these breathtaking minutes. The performers were poets, storytellers, besides being artists. As stage is being set for next performance, I request you to take a sneak peek at the efforts put in to put up this show today. We have a simple behind the screen video for you. Yeah, yeah.